नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एनजेपी ड्राई पोर्ट की घटना को लेकर भाजपा ने बुलंद की आवाज, तृणमूल कांग्रेस पर साधा निशाना। एनजेपी ड्राई पोर्ट में तोड़फोड़ की घटना को तृणमूल कांग्रेस छोटा करके दिखाने की कोशिश कर रही है, ऐसा ही आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाई गई है। भाजपा के राज्य महासचिव सांतन बासु ने आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल के एक मंत्री समेत अन्य नेता द्वारा भाजपा के नेताओं को फोन करके पार्टी में लाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें विभिन्न माध्यमों से धमकी भी दी जा रही है। आज एक पत्रकार सम्मेलन कर भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव सांतन बासु ने एनजेपी की घटना की तीव्र निंदा की। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से पहले और बाद में भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला उपाध्यक्ष जयदीप नंदी को तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री समेत नेताओं द्वारा उन्हें पार्टी में लाने के लिए फोन कर परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभिन्न तरीके से उन्हें धमकी भी दी जा रही है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भाजपा छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर फोन या धमकी देना बंद नहीं किया गया तो भाजपा उन लोगों के घरों के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या तो कि एनजेपी ड्राई पोर्ट में तोड़फोड़ की घटना को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो चुका है। इस घटना में शामिल तृणमूल कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत रॉय को पार्टी से बहिष्कृत भी कर दिया गया है। এটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় আমাদের যাত্রাকে আটকেছে। বেশ মোবাইল চালাচ্ছে রথযাত্রা, এটা রথযাত্রা নয়, এটা পরিবর্তন যাত্রা। কনভয় আটকালে, বাস আটকালে আমরা পায়ে হেঁটে করব। এখন আবার হাইওয়ে দিয়ে চলতে শুরু করেছে যাত্রা। কালকে রাত অবধি পারমিশন ছিল, আজকে কি ঘটে গেল? আইন শৃঙ্খলার অবনতি হবে। কারা করবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি? কেন করবে? মুর্শিদাবাদ জেলাটা কি পাকিস্তান যে ওখান দিয়ে বিজেপির যাত্রা যেতে পারবে না? না বেলডাঙাটা পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে? কাজে আমরা যে অভিযোগ করছি যে পুলিশ দলদাস তৃণমূল নেতাদের অঙ্গুল হিলনে এই কাজটা করছে, আজকের বেলডাঙা মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এটা প্রমাণিত। আমার মনে হয় দেশের এবং রাজ্যের জনগণ এটা দেখছেন। আমরা আমাদের যাত্রা করব, 5টি যাত্রাই করব। আগামী 11 তারিখ উত্তরবঙ্গের যাত্রাও শুরু হবে। আমাদের কনভয় আটকাতে পারেন, আমাদের বাস আটকাতে পারেন, কিন্তু তাহলে আমরা পায়ে হেঁটে করব, সাইকেল দিয়ে করব, কিন্তু আমাদের দূরত্ব আমরা অতিক্রম করব। যে বিধানসভায় আমাদের আটকাবে, অন্য বিধানসভার কার্যকর্তারা সেই বিধানসভা থেকে আবার যাত্রা শুরু করবে। যে ঘটনা ঘটেছে, যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা, আমরা গত 2-1 দিন ধরে দেখছি যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীরা সেই ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে সবাই জানে, শিলিগুড়ির মানুষ জানে, আপনারা সবাই জানেন যে ঘটনাটা কিছুই না তোলাবাজিকে কেন্দ্র করে এইভাবে তাণ্ডব, যেটা আইসিডিতে চালানো হয়েছে, যথেচ্ছ ভাঙচুর চালানো হয়েছে এবং সেখানে বোমা গুলি চলেছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীরা তারা ব্যাপারটাকে শুধুমাত্র শ্রমিক বিবাদ বলে তারা চালিয়ে দিতে চাইছে, ব্যাপারটা গুরুত্ব লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করছে। আইসিডি কর্তৃপক্ষ পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে, তাদের কমপ্লেনও জানিয়েছে এবং পাবলিকলি বলেছে যে তাদের কাছে তোলা চাওয়া হয়েছে 1 লক্ষ টাকা করে প্রতি র্যাকে, সেটা দিতে অস্বীকার করাতে সেখানে হামলা করা হয়েছে পরিকল্পিত। এটা হচ্ছে একটা বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে গতকাল ওখানে যে যারা জড়িত, এই দুষ্কৃতীরা যারা এই অপকর্ম করেছে, যারা এই ভাঙচুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের মধ্যে 13 জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু যখন বহিষ্কার করা হচ্ছে, গতকাল দেখলাম আমরা প্রেস কনফারেন্স শাসক দলের, সেখানে 1 জনকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। झगड़े के चलते बड़े भाई ने की कालिंगपोंग में छोटे भाई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार किया गया अदालत में पेश। कालिंगपोंग शहर से सटे गुम्बाहाटा इलाके में बड़े भाई द्वारा अपने ही छोटे भाई की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रोहित पंचकोटी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार कालिंगपोंग शहर से सटे गुम्बाहाटा इलाके के रहने वाले 34 वर्षीय रितेश पंचकोटी और उसके भाई रोहित पंचकोटी के बीच कल रात किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इस बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को हथौड़ा से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और इस बीच उसकी मौत भी हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परिवार में सिर्फ दोनों भाई ही थे जो उक्त इलाके में रहते थे। तत्काल पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई और
पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम हेतु कालिंपोंग जिला अस्पताल में भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई। आज यानी सोमवार को उक्त आरोपी को कालिंपोंग जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर शहर की सफाई ठप करने की चेतावनी। 10 फरवरी को धिक्कार रैली निकालेंगे सफाई कर्मी। उत्तरबंग सफाई कर्मचारी समिति ने अस्थायी सफाई कर्मियों को स्थायीकरण, ड्यूटी के दौरान मारे गए सफाई कर्मियों के परिवारों के सदस्य को स्थायी नौकरी दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। संगठन की ओर से बताया गया कि इन मांगों को लेकर इससे पहले सिलीगुड़ी नगर निगम को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई। सोमवार को सिलीगुड़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में समिति के अध्यक्ष किरण राउत ने बताया कि 22 दिन पहले इन मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसका अब तक कोई जवाब उन तक नहीं पहुंचा। साथ ही उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर 10 फरवरी को समिति की ओर से नगर निगम के खिलाफ धिक्कार रैली निकाली जाएगी। रैली शहर के भागोजतीन पार्क से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करेगी। उन्होंने कहा कि धिक्कार रैली में सिलीगुड़ी नगर निगम के सभी सफाई कर्मी हिस्सा लेंगे। राउत ने कहा कि इस धिक्कार रैली के बाद भी यदि उनकी मांगे नगर निगम के द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो वे 11 फरवरी से पूरे शहर में सफाई का काम बंद कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। আজকে আমরা প্রেস মিট করেছি যে আমরা 8 দফা দাবি নিয়ে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে 13 তারিখে একটা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। সেই ডেপুটেশনে আজকে 13 তারিখ মানে 20-22 দিন হয়ে গেছে, সেই এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু তার রিপ্লাইটা পাইনি। আমরা আজকের দিনে একটা রিমাইন্ডার দিয়েছি আর প্রেসের মাধ্যমে ওনাকে জানানো হয়েছে যে আগামী দিন যদি এই সমস্যার সমাধান যদি না হয় তাহলে আমরা 10 তারিখে একটা র্যালি বের করে একটা ধিক্কার মিছিল করব আর আগামী 11 তারিখ থেকে বাধ্য হব আমরা সাফাইয়ের কাজ সারা শিলিগুড়িতে বন্ধ। দাবি ছিল আমাদের বিভিন্ন রকমের যাদের পার্মানেন্ট করা 30 বছর 25 বছর ধরে যারা চাকরি করছে তাদেরকে এখনও 6000 টাকা মাইনা দিয়ে চাকরি করা হচ্ছে, সেটাকে পার্মানেন্ট করা হোক। প্লাস যারা বাবা মা মারা গেলে তাদেরকে টেম্পোরারি হিসাবে কেন নেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে পার্মানেন্ট হিসাবে চাকরি দেওয়া হোক। একটা লোককে 6000 টাকা মাইনা দিয়ে তার কোনোদিন সংসার কিন্তু চলে না। আজকালকার বাজারে 6000-7000 টাকা দিয়ে বেচারারা সাফাই কাজ করে আজকে দীর্ঘদিন ধরে তারা বাচ্চা কাচ্চাকে পড়াশোনা করাবে না, নিজে ট্রিটমেন্ট করবে না, নিজের জন্য বয়স হওয়ার জন্য সঞ্চয় করে রাখবে। चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग जिले के नेताओं का पहाड़ दौरा हुआ शुरू। पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसकी तैयारियां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा शुरू कर दी गई है। इस बीच उत्तर बंगाल पहाड़ पर अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए भाजपा पूरी कोशिशों से कार्य कर रही है। इस बीच आज भाजपा दार्जिलिंग जिले के प्रदेश प्रभारी भास्कर डे और भाजपा के राज्य प्रदेश युवा कार्यकारिणी सदस्य राजीव शर्मा कालिंपोंग पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने राज्य की टीएमसी सरकार और गोजामोमो सुप्रीमो बिमल गुरुंग पर भी हमला बोला और कहा कि बंगाल में जो परिवर्तन की लहर आई हुई है अब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये खत्म हो जाएगी। राज्य की जनता दीदी को इस बार हराकर अपने क्षेत्र में बीजेपी को भारी मतों से जीत दिलाई। पर्यवेक्षक बनने का ये तीसरा चौरन में मेरा कालिंपोंग में दौरा है और तीसरी चौरन जो दौरा है उसमें देखा पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट लेवल में जो संगठन है बहुत मजबूत हुआ है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और दूसरा पार्टी से हर रोज़ ज्वाइनिंग हो रहा है। और हम लोग देखा जो गोरखा समाज 2009 से जब बंगाल में कोई सांसद नहीं था, इस गोरखा समाज ने बीजेपी को खाली हाथ नहीं दिया। 2009 से बार बार सांसद दे रहा है दार्जिलिंग का लोग भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी जो पहाड़ का तीनों सीट है दार्जिलिंग, काशियांग, कालिंपोंग सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत मत से इस तीनों विधानसभा क्षेत्र में जीतेंगे। चाहे हम लोगों का जो मित्र घटक है केस का वजह से, पोलोवेन का वजह से दूसरा तरफ चला गया, फिर भी हम लोग जो यहाँ भी हमारा कुछ घटक दल है
इस घटक दल को लेके हम लोग ये तीनों सीट में मजबूत के रूप में इस सीटों में हम लोग जीतेंगे। और अभी हमारा प्रेसिडेंट नया अच्छा बहुत गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तोड़ के आ गया, उनको नेतृत्व में पहाड़ में बहुत अच्छा संगठन हो रहा है। प्रेसिडेंट ने हमको बताया काल भी ज्वाइनिंग हो रहा है, बहुत बड़ा रूप से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तोड़ रहा है, विमल शिविर भी तोड़ रहा है, तो सब लोग बीजेपी में आ रहा है। बाकी यहाँ का जो पार्टी है विनय तमांग और विमल गुरु, मैं आते आते राजीव शर्मा हमारा मित्र है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, और वो बता रहे थे जो डुआर्स में एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिलने से आर्मी में गोरखा रेजिमेंट में नौकरी नहीं मिल रहा है, वो डुआर्स में हो रहा है। कोई ममता बनर्जी चुपचाप है, कोई बात नहीं बोल रहा है। यहाँ का जो एसडीओ है अलीपुरद्वार का जो एसडीओ है, डीएम है, गोरखा सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिलने से गोरखा रेजिमेंट में गोरखा लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी गोरखा रेजिमेंट में बाहर का लोगों को लोग आ रहा है, कोटा जो है फुलफिल नहीं हो रहा है। 2004 भएन, 14 देखि 19 भएन, 19 पछि भयो। त्यसरी नै ट्रिपल तलाक 2019 को पछि भयो। त्यसरी नै गोरखाको सपना जुन तपाईले कुरा भन्दै हुन्छ, गोरखाको स्थायी समाधान, अस्थायीको कुरा गर्दिन, अस्थायीको तपाईलाई कलकत्ताबाट धेरै आश्वासनहरू आउँछ। अहिले पनि आश्वासन आउँदैछ कि समाधान कसैले गर्छ त कलकत्ताबाट गर्छ अरे, त्यो झुटो आश्वासन हामीले देखिसक्यौं। तर भारतीय जनता पार्टीले जुन दिन समाधान गर्छ, स्थायी समाधान गर्छ, पर्मानेन्ट समाधान गर्छ, समय लाग्ला तर मनाही हुँदैन। जुन प्रकारले जम्मू कश्मीर तपाईहरुलाई थाहा थियो हुनेवाला छ, अचानक भयो हैन, समय आयो भयो, 370 गयो, राम जन्मभूमि बन्यो, 500 वर्ष पुरानो इच्छा आकांक्षा, देशको 100 करोड हिन्दूको इच्छा आकांक्षा पूरा भयो। त्यसरी नै देशको 1.5 करोड गोरखाको सपना इच्छा आकांक्षा सब 2021 को निर्णायक लडाई हो। यो चाहिँ निर्णायक महाभारत युद्ध हो, सत्य र असत्यको। त्यसरी नै गोरखाहरूको सपना इच्छा आकांक्षा एस्पिरेसन को 2021 को चाहिँ निर्णायक युद्ध हो। यो युद्ध पछि तपाईले जुन पर्मानेन्ट सोल्युसन जुन गोरखाको लागि माटोको भूमि कुरा गर्दै हुन्छ, भारतीय कसैले दिन्छ भने भारतीय जनता पार्टीले दिन्छ। कहिले दिन्छ भने 2021 को इलेक्सनको पछि दिन्छ, किनभने भारतीय जनता पार्टीले इलेक्सन। मंगलवार से जलपाईगुड़ी में भी शुरू हो रहा है उत्तरबंग उत्सव। कोलकाता के प्रख्यात कलाकार मधवंती बागची होंगे शामिल। जलपाईगुड़ी जिले में मंगलवार से उत्तरबंग उत्सव शुरू हो रहा है। उत्तरबंग विकास विभाग की ओर से आयोजित इस उत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहर के कलाकारों भी अपने जलवे बिखेरेंगे। सोमवार दोपहर को एक पत्रकार सम्मेलन में जलपाईगुड़ी सूचना व संस्कृति विभाग के अधिकारी सूर्य बंदोपाध्याय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बुधवार को उत्तरबंग उत्सव में कोलकाता के प्रख्यात कलाकार मधवंती बागची समेत अन्य कलाकार अपने कार्यक्रम पेश करेंगे। इसके अलावा जिले के विभिन्न लोक संगीत व कलाकार भी उत्तरबंग उत्सव के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह में जिला शासक समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। आगामी काल एवं परशु अर्थात 9 এবং 10 उत्तरबंग उन्नयन दप्तरेर सहयोगिताय एवं आमादेर जिला प्रशासनेर उद्योगे এটা আমাদের উত্তরবঙ্গ উৎসব জলপাইগুড়ি ফেজ সেটা আগামীকাল এবং পরশু উদযাপিত হবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কলকাতা তথা বাইরের আর্টিস্ট নিয়ে আমরা এটাকে একটা গ্র্যান্ড উৎসবের একটা মোড়কে আনতে চাইছি। তো এই হচ্ছে মোটামুটি কালকের এবং পরশুর বিশেষ যে কার্য অনুষ্ঠান। তারপরে যেটা রয়েছে 10 তারিখে আমাদের স্পেশাল আকর্ষণ হলো মধুবন্তী বাগচি আসছেন, যিনি প্রথিতযশা শিল্পী এবং কলকাতা স্বনামধন্য একজন গায়িকা। তিনি আসছেন, তিনি এখানে অনুষ্ঠান করবেন, পারফর্ম করবেন। আমি সমস্ত জলপাইগুড়ি যারা অধিবাসী আছেন তাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি যে আপনারা আসুন, অনুষ্ঠান দেখুন, প্রবেশ অবাধ, কোনো অসুবিধা নেই। আগামীকাল আমাদের 5টার সময় উদ্বোধন হবে। শুধু তাই নয়, আমরা কিছু এনবিডিডির যে নির্দেশিকা সেই মেনে আমরা ছাত্রছাত্রীদের যারা মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট আছেন তাদেরকেও আমরা কিছু গ্রান্ট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাদের নির্দেশ অনুযায়ী। স্যার, প্রথম দিনে কি উদ্বোধন কারা করছে? উদ্বোধনে আমাদের বিভিন্ন যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তারা আসছেন এবং
জলপাইগুড়ি পৌরসভা জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বিধায়ক তারা আসছেন। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायगंज में स्टेडियम में होने वाली मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर चल रही है व्यापक स्तर पर तैयारियां। जिला सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल ने लिया तैयारियों का जायजा। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 10 फरवरी को रायगंज स्टेडियम में जन समूह को संबोधित करेंगे। इसके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। रायगंज में इन तैयारियों का जायजा लेने आज उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल पहुंचे थे। उन्होंने आज सभी तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही मंच स्थल पर भी गए जहां पर मंच तैयार किया जा रहा है। उन्होंने मंच को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरा रायगंज शहर तैयार है। उन्होंने कहा कि 70 से 80 हजार लोग मुख्यमंत्री की सभा में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर दिनाजपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काफी कार्य किया है, यही कारण है कि जनता उनसे काफी प्यार करती है। उनके स्वागत के लिए सभी तरह की तैयारियां रायगंज में चल रही है। কাজ তো এগোচ্ছে, মোটামুটি 75% 80% কাজ হয়ে গেছে। আর যেগুলো আছে ওটা কালকের মধ্যে সব হয়ে যাবে। মিনিমাম 70 থেকে 80 হাজার। যাবি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, আরও চাই সব দিক দিয়ে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সব দিক দিয়ে। पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ तृणमूल छात्र परिषद ने निकाली रैली। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ने के खिलाफ तृणमूल छात्र परिषद की ओर से सोमवार को जलपाईगुड़ी जिले में विरोध प्रदर्शन किया गया। जलपाईगुड़ी तृणमूल छात्र परिषद की ओर से सोमवार को पेट्रोलियम पदार्थों समेत अन्य दैनिक चीजों के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ तथा केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में एक साइकिल रैली भी निकाली गई थी। रैली शहर के थाना मोड़ इलाके से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए DBC रोड स्थित पेट्रोल पंप के निकट पहुंचकर समाप्त हुई। पेट्रोल के दाम बढ़ने के खिलाफ रैली में शामिल मोटरसाइकिल को सड़क पर बिना चलाए लाया गया
तृणमूल छात्र परिषद की ओर से पेट्रोल पंप के सामने कुछ देर तक विरोध प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने डीजल व पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ मोटरसाइकिल की अर्थी निकालकर सरकार के प्रति अपना विरोध जताया। इसके साथ ही तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने आज पेट्रोल पंप पर अधिक कीमत पर पेट्रोल खरीदने वाले लोगों को मिठाई भी खिलाया। আমরা দেখতে পাচ্ছি 2014 পর থেকে কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির যে সরকার, সেই সরকার দুষ্কৃতী সরকার বসেছে এবং তারপরে ক্রমশই পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে দেওয়া, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে বাধা বিপন্ন করা এবং কেবলমাত্র ধনী পরিবার, ভারতবর্ষে 5 থেকে 6টা ধনী পরিবারের এই সরকার, যে সরকার সাধারণ মানুষের জীবিকা, জীবন এবং বেঁচে থাকার যে ন্যূনতম যে আমাদের ক্রাইটেরিয়া, সেই ক্রাইটেরিয়ার উপরেও আঘাত করছে। এবং দেখতে পাবেন আজকে পেট্রোল প্রায় 100 টাকা লিটার, ডিজেল আজকে প্রায় 90 টাকা লিটার। আপনারা সকলেই জানেন পেট্রোলটা অতটা ম্যাটার না, কিন্তু ডিজেলের দামটা যখন মূল্যবৃদ্ধি হয়ে যায়, ডিজেলের যখন মূল্যবৃদ্ধি হয় তখন কিন্তু বাজারে প্রত্যেকটা জিনিসের সামগ্রী, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোই বৃদ্ধি পায়। কারণ ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট কিন্তু আমাদের বড় গাড়ির মধ্যে হয়, যে বড় গাড়িগুলো প্রত্যেকটা ডিজেল চালিত। তার জন্য আজকে দেখবেন বাজারের প্রত্যেকটা জিনিসের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে এবং কেন্দ্রের যে নরেন্দ্র মোদী সরকার, সেই সরকারের একটা জনবিরোধী নীতির আরেকটা হচ্ছে প্রমাণ যে ডিজেলের থেকে তারা ভর্তুকি তুলে নিয়েছে, ডিজেলের থেকে ভর্তুকি তুলে নিয়েছেন, রান্নার গ্যাসের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নিয়েছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা একদম বিপন্ন আছে। তাই প্রতীকী আমরা আজকে প্রতিবাদ জানালাম। আমরা আগামী দিনে আমাদের উপর আমাদের পয়সা দিয়ে, টাকা দিয়ে আমাদের পেট্রোল কেনার दोगुने दाम में मिल रहे लोकल ट्रेन की टिकटें, यात्रियों ने किया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन में रिजर्वेशन काउंटर पर फॉर्म फिलअप कर लोकल ट्रेन के टिकट के लिए दोगुने दाम वसूले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अचानक इस तरह टिकटों के दाम बढ़ने के खिलाफ आक्रोशित रेल यात्रियों ने सोमवार को यानी आज स्टेशन परिसर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लंबे समय तक ट्रेन के मुख्य गेट के सामने खड़े होकर प्रदर्शन करते रहे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण करीब 10 महीने तक बंद रहने के बाद सोमवार को जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन पर दोबारा लोकल ट्रेन परिसेवा शुरू हुई है। आज सुबह ट्रेनों में सफर करने के लिए काफी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे। दूसरी ओर रेलवे की ओर से रिजर्वेशन काउंटर में फॉर्म फिलअप कर टिकट दिए जा रहे हैं। इससे लोग भड़क उठे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना था कि लंबे समय के बाद न्यू जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी लोकल ट्रेन चालू हुई है, वहीं लोकल ट्रेन के टिकटों के लिए रिजर्वेशन के जरिए दोगुने दाम लिए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि पहले जिस टिकट का दाम 10 रुपया था, अब रिजर्वेशन के जरिए उसके लिए 25 रुपये लिए जा रहे हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन काउंटर पर फॉर्म फिलअप का टिकट काटना पड़ रहा है, जिसमें उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। रेलवे की ओर से इस बारे में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। এখানে আমরা আসছি টিকিট কাটার জন্য। টিকিট কাটতে এসে আমরা জানতে পারলাম যে প্যাসেঞ্জার অর্থাৎ কি লোকাল ট্রেনে এখানে নাকি রিজার্ভেশনে ফর্ম ফিল আপ করে আর কি রিজার্ভেশন টিকিট কাটতে হয়। কিন্তু কলকাতায় আমি গিয়েছি, কলকাতায় যারা এখনও ট্রেনে উঠছে, এখন আমি খবর নিয়েছি যে কলকাতায় তাদের কিন্তু রিজার্ভেশন করতে হয় না লোকাল ট্রেনে, একমাত্র তাদের সেখানে এক্সপ্রেস ট্রেনে রিজার্ভেশন করতে হয়। হ্যাঁ, এইমাত্র আমি খবর নিলাম, বললো যে না এখানে তো যতগুলো ট্রেন চলছে একটাও না। তাহলে একই রাজ্য কলকাতাতে চলছে, সাথে সাথে টিকিট পাওয়া যায়, কোনো রিজার্ভেশনে ফর্ম কোনো রকম ফিল আপ করতে হয় না, সেটা একমাত্র এক্সপ্রেসে ফিল আপ করতে হয়। কিন্তু এখানে এসে আমরা জানতে পারলাম যে এখানে এসে মানে লোকাল ট্রেনেও ফর্ম ফিল আপ করতে হয়। কিন্তু এটা তো আমাদের ঠিক নয়। এটা যদি করে তাহলে সাধারণ মানুষগুলা চলবে কেমন করে? এটা আমরা আজকে স্টেশন মাস্টারকে আমরা জানাবো, ওনার মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমরা জানানোর চেষ্টা করব, যাতে কলকাতার নিয়মটা এইখানে প্রযোজ্য হয়। এখানে একরকম নিয়ম, কলকাতার নিয়মটা যেন আলাদা না হয়। যদি এটা না করে তাহলে আমরা এখানে আমাদের সেই বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এটাকে আদায় করার জন্য সুবিধা তো মানে অবশ্যই প্রায় এক বছর আজকে প্রথম ট্রেন আসবে, ওই জন্য একটু অ্যাডভান্স এসছি। ট্রেনের জার্নিটা বাসের থেকে অনেক ভালো, আরামদায়ক। কিন্তু আজকে এসে টিকিট কাউন্টারে যেটা জানতে পারলাম যে আগে আমরা এই লোকাল ট্রেনে আমরা ঠিক 10 মিনিট 15 মিনিট এসে কাউন্টারে ওই টাকা দিয়ে আমরা টিকিট পেয়ে যাই, কিন্তু এখানে টিকিটের সিস্টেমটা করে দিয়েছে রিজার্ভেশন সিস্টেম এবং ফর্ম ফিল আপ করে অল্প সময়ের মধ্যে টিকিট কাটতে হবে। এবং আমরা যারা ট্রেনে যাতায়াত করি মানে সুবিধা বলে
এবং তাদের ক্ষেত্রে এই অল্প সময়ে রিজার্ভেশন সিস্টেমে টিকিটটা কালেকশন করাটা একটা খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর টিকিটের দামটাও 10 টাকার টিকিট 25 টাকা। তাহলে এইটা একটা খারাপ দিক, এটা আমাদের কাছে একটা অসুবিধা বা সমস্যা মনে হচ্ছে। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সুবিধা বলতে আমাদের একটাই সিঙ্গেল এজেন্ডা, যে আমাদের যারা ডেলি প্যাসেঞ্জার, যারা এনজিপি টু হলদিবাড়ি আমরা ট্রাভেল করি, আমাদেরকে কোনো এমএসটি টিকিট দেওয়া হয়নি। আমরা চাই যেটা একটা এমএসটি টিকিট করা হোক, বা সিজনাল টিকিট যেগুলো বলে রেলের থেকে তরফ থেকে দেওয়া হয় সেটাই করা হোক। এবং কারণ কি প্রতিদিন অনলাইন টিকিট পারচেস করা বা অনলাইনে টিকিট করা বা কাউন্টারে গিয়ে টিকিট করা এই ডেলি প্যাসেঞ্জারদের পক্ষে সম্ভব। আমরা চিঠি করেছি, আমরা চিঠি করেছি, আমরা দেখি যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কী দায়িত্ব নেই। माता पिता ने की बेटे की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां माता पिता द्वारा अपने ही बेटे की धारदार हथियार से हत्या करने की बात कही जा रही है। कूच बिहार के हरिभांगा इलाके में कल रात इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने आरोपी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कल रात जयंत कुमार सरकार नामक युवक को उसके पिता तपन कुमार सरकार व माता छाया रानी सरकार ने धारदार हथियार से कथित तौर पर हत्या कर दी। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने बताया कि इन दोनों के बीच जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के भाई ने माता पिता पर अपने द्वारा अपने दूसरे भाई की हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करी है। उन्होंने कहा कि पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। आज शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुंडीबाड़ीते फारूक रहमान, अजय कामित, अहमद हुसैन, हसीनुर रहमान ये लोग আছে। মার্ডার কেসে 4 জন আসামি ছিল, তপন সরকার, অচিন্ত্য সরকার, ছায়া রানী সরকার আর মানিকা সরকার, সব সেম ফ্যামিলি, 4 জনকে কালকে এই কেসে মানে কিছু ই ছিল, মানে কোনো ফ্যামিলি ইস্যু হতে পারে, ঠিক আছে, কোনো ফ্যামিলি ইস্যু ঝামেলা নিয়ে আমি কালকে পুলিশ খবর আমার কাছে এসেছিল কি একটা ডেড বডি পড়েছিল এরিয়া আছে হাড়িভাঙ্গা, ওখানেই ডেড বডি ছিল। পরে ওকে যে ইনভলভ ছিল ওর সিডিআর ফোন লোকেশন পাওয়া গেছে, ও ধরে ওর বাবা মাকে ধরা হয়েছিল। পরে ওর যে ছেলে আছে যে ওখান থেকে অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট হি ওয়াজ অ্যাবসকন্ডেড, তো ওকে পরে ফোন লোকেশন ধরে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। আর ওর একটা স্ত্রী আছে। স্যার মার্ডারটা কিভাবে হলো, কি দিয়ে মেরেছে স্যার? अब तो पीएम रिपोर्ट এখনো आज की पीएम হবে, लेकिन যে প্রাইমা ফেসি দেখা মনে হচ্ছে কি ও কাট ইনজুরি আছে, মানে ये एट प्रेजेंट एफआईआर नेम्ड নিজে ওর ভাই কমপ্লেন দিয়েছে, বাবা মা ওর ভাই একটা ওর ভাই और स्त्री। रायगंज में घर घर तक पहुंच रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के शिक्षक कमेटी समिति के सदस्य। लोगों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी जा रही है। पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही सभा करके लौटे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार सलाहकार प्रशांत किशोर ने तृणमूल कांग्रेस को आगामी चुनाव में जीत हासिल कराने के लिए कुछ अलग ही रणनीति तय कर रखी है। इस रणनीति के तहत शिक्षक समिति के सदस्य लोगों के घर घर तक पहुंचकर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी के सदस्य रायगंज के 10 वार्डों में घूम कर लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं। आम लोग जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं उसको द्वारे सरकार और पाड़ाए योजना के तहत समाधान किया जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी शिक्षक समिति के सभापति गौरांग चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम लोगों के लिए जीवन से लेकर मृत्यु तक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रखी है। वहां चाहे मुफ्त राशन देने की बात हो या विधवा भत्ता या फिर वृद्ध भत्ता, इन योजनाओं को पहुंचाने का काम आम लोगों तक किया जा रहा है और साथ ही उनकी समस्याओं को भी जाना जा रहा है ताकि उसका समाधान किया जा सके। আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিকে গতকাল রাত্রে একটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পিকে টিমের যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে বাংলার গর্ব কার্ড নিয়ে 2011 থেকে 2020 সন পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেসব উন্নয়নগুলো কাজ করেছেন সেগুলো আপনাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে, মানুষের কাছে জানাতে
এবং মানুষের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না, সাধারণ মানুষের যদি অসুবিধা হয় তাহলে দুয়ারে সরকার পাড়ায় সমাধানে গিয়ে সেই সমস্যাগুলো জানাতে। এবং তার থেকে বড় কথা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বাজেটে বলেছেন যে 18 বছরের বয়স থেকে যদি কেউ বিধবা হয়ে যায়, তার যদি 60 বছর নাও পূর্ণ হয় তবুও সে বিধবা ভাতা পাবে। এই ধরনের নতুন প্রজেক্টগুলো মানুষ জানে না, সেগুলোকেই আমাদের শিক্ষক সংগঠনের প্রত্যেক নেতৃত্ব রয়েছেন এখানে সবাই নেতৃত্বরা মিলে আমরা যে ওয়ার্ডগুলোতে মানুষ বুঝতে পারছে যে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে জয় শ্রীরাম কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বিজেপি, ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়ে ভোট আদায় করতে চাচ্ছে। কিন্তু আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিকরা আমরা জয় শ্রীরামও বলি, আবার জয় দুর্গাও বলি, জয় কালীও বলি, কিন্তু তার সাথে সাথে মানুষের যে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়নগুলোকেও তুলে ধরে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। এই কথাগুলোই শিক্ষক সমাজ বাড়ি বাড়ি এবং আগামী দিনে সমস্ত পৌরসভার আমাদেরকে 10টি ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, 10টি ওয়ার্ডেই আমরা বের হচ্ছি, শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করব। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।